A warm good morning and welcome to directors, sir, faculty members, staff members, and dear students. Hope you all are doing well. I, Hitesh Chandra Molastan, Professor, State IHM, welcome you all to this webinar on the occasion of World Tourism Day. World Tourism Day is celebrated as an International Awareness Day on 27th September every year since 1980 by UNWTO and World. The purpose of this day is to raise awareness on the role of tourism within the international community and to demonstrate how it affects social, cultural, political, and economic values worldwide. As you all know, COVID-19 has massive social and economic impact, which has hit both developing and developed countries, and also tourism and hospitality industry had a major impact due to COVID-19. UNWTO has therefore designated World Tourism Day 2021 as a day to focus on tourism for inclusive growth. Today's webinar will allow us to discuss about opportunity to look beyond tourism statics and acknowledge that behind every member there is a person, as well as non-members, sister agencies, businesses, and individuals to celebrate tourism's unique ability to ensure that nobody is left behind as the world begins to open up again and look to the future. With these words, I would like to request respected director sir to grace us with some motivating words. Over to you, sir. Sir, your mic is mute. Yeah. Good morning to all the faculty members, dear students, all the stakeholders, which directly relate to the tourism. On this auspicious occasion of World Tourism Day, a warm welcome to all of you. As UNWTO described the theme, Tourism for Inclusive Growth, and the slogan which we have generated today, accordingly the UNWTO, the journey is destination. That is one said by Dan Eldon. World Tourism Day has been celebrated on 27th September each year since 1980 to spread awareness about the importance of tourism and its impact on our society, indirectly or directly. This day is also celebrated to spread awareness about the global challenges outlined in the agenda for sustainable development and to underline the efforts of the tourism industry. The tourism industry achieving the sustainable development goals that has been already decided by UNWTO, and there are some objectives which we have to focus on, or even entire world have to focus on. 27th September we celebrate the day and how travel helps us to recharge and build meaningful connections. As we have been, recorded from last more than 20 years, 30 years, without the connection, I guess tourism is half. So that is why the UNWTO has focused on the relationship in this time. And that is what the theme is, inclusion of all. How travel helps us to recharge and rebuild the meaningful collections. After a couple of year isolation, I should say this isolation, from last 2 years. It has been, although there is no activities going on in terms of tourism. This isolation, and people now are eager to
prepare itinerary, eager to go for trips. As you know, the vaccination campaign have advanced all the countries, I mean, all together in the world, and the countries are reopening now, and they've started reopening. It has been observed very closely that increased optimism and readiness to make up for lost time, which we have, faces during last 2 years, I guess. The optimism should be definitely in the life, whether it's a travel or whether anything. The COVID-19 pandemic impacted massively and hit it very badly on social and economic world of this particular civilization. The developed and developing countries' economics have been hit very hard, very hard. I appreciate the UNWTO that the theme for the World Tourism Day 2021, the entirely stand for, you can say, focusing on the social impact. Obviously, we are a social people, so we need to travel. We need to take responsibility of one-to-one and meet one-to-one, develop our state, develop our region. The celebrating tourism ability to drive inclusive development for many millions across the globe. It is about creating an environment where all people will feel welcome and included. Nobody should be left behind. That is what the inclusion says. We should collect each and every stakeholders from top to bottom. It creates a choice and instills confidence in all the people, empowering them to sign up for new experience. And in this relation, UNWTO generates market knowledge, promote competitive and sustainable assistance altogether. This is how we need to work. This is how we are the stakeholders. We need to work rigorously. A slogan has come into my mind that you must have heard about Rai Bahadur Mohan Singh Oberoi's, the father of hospitality industry in India. He says, as a leader and a visionary, he said, dare to dream. And obviously, after that, you see the Oberoi, where it is. I guess now, a good news for all the travel sector, which had to adapt ever-changing COVID restrictions. Obviously, we need to have. And border closing in the last year. For many travel business, technology and data insight have become lifeline. And that has been, we are observing, I mean, not 100%, but out of the 100%, I mean, 10% people have started their own, insights to going for an online business. So I guess these insights have become lifeline to understand the shifts in the travel demand and better connect with the potential visitors. Getting, you can say, skills or probably a skill training for small and medium travel business in the region, so they can use
online tools to attract new guests, new customers, and go through their business. As more people want to travel sustainably and look for eco-friendly services now, कहीं ना कहीं there is a एक डर कोविड का बैठा है, which need to be solved out in very different aspects. I guess this mode will be easier to find out. Probably the planet, where you can see a lot of people visiting unknown places, and this should be eco-friendly altogether. When traveling, also the information about the there is a new I guess which I've read about. There is a new custom, or you can say concept, has been developed by the hotel sustainability. You can find out. I mean, this has been started now, not in India, but yes, obviously in outside of the India. And this hotel sustainability, there are some hotels which have been started this sustainable process. So in this process, there are many tools which have come across, and there seems to be a very fruitful now, and near future also. I mean, it will be a fruitful for all of us. So these are the few points. I mean, I wanted to convey to you, and definitely, I mean, we will work all together to promote the tourism, because it's been hit hard badly. And yes, again, I mean, on the occasion of the World Tourism Day, we should remain optimistic that the hospitality industry will definitely 100% reemerge stronger and more sustainable. And one more point: if you have, if you want to inspire someone and ask him to visit this area, this Tihri, this Uttarakhand, or this India. So that is all from my side. Thank you very much to all of you, and once again, happy Tourism Day to all of you. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you very much, sir. Proceeding further, I would like to request Mr. Jaswant Jara to speak on the topic basics of tourism and its elements. Over to you, sir. Thank you very much, sir. Proceeding further, I would like to request Mr. Jaswant Jara to speak on the topic basics of tourism and its elements. Over to you, sir. Yes, good morning. Am I audible? Your voice is echoing, in fact, 2-3 times. आप अपना माइक बंद कर दो. Okay. Good morning, Director sir. स्पीकर कम कर लीजिए थोड़ा अपना. Eminent faculty members, dear students, tourism stakeholders, delegates, government representatives. As you know, today we all are organizing World Tourism Day 2021, having a theme, Tourism for Inclusive Growth. World Tourism Day
is every year organized by UNWTO, that is United Nations World Tourism Organization, on 27 September since 1980. UNWTO is an agency of United Nations which deals to promote sustainable and universally accessible and acceptable tourism. This year, UNWTO has issued a theme on considering the bad effects, the bad impacts of COVID-19 faced by all the countries, and better to say, the tourism of all the countries. That is why the UNWTO has issued a theme, tourism for inclusive growth. It means now it is a time to look back to our tourism stats, that how we could again re-kick our tourism industry and make it again vibrant and prosperous for all the communities and all the intermediaries connected to this tourism industry. That is why we could say, and we could take our theme into ground, that we have somehow started to make all the intermediaries, all the sub industries for growth. Whether it is a small rickshaw wala, whether it is a small kiosk wala, whether it is a pani puri wala, somehow all these people are connected to us. Somehow they are the people who are catering to the tourist. It's the responsibility of the whole tourism community to encourage them all and just pull them up from the bad and worst effect of COVID-19, so that further in coming years they could contribute best through their services in tourism. In continuation to this, I have here to share few basic concepts of tourism and the components and characteristics of tourism industry. Before that, I would love to share some kind of stats of the Indian tourism, so that I could make my presentation more fruitful to the audience and all. See, tourism is a vibrant and growing and economical useful activity here in India. And as per the World Travel and Tourism Council, they calculated that in 2018, India have generated 16.91 lakh crores through tourism. 16 लाख करोड़ के आसपास, जो अराउंड $240 बिलियन होता है, इसके आसपास उन्होंने टूरिज्म के थ्रू अर्निंग जनरेट करी है 2018 में, और जीडीपी में, इंडियाज जीडीपी में कंट्रीब्यूट किया है. In 2019, in India we are having around 10 million foreign arrivals. We are having 10 million foreign arrivals in 2019. 10 मिलियन फॉरेन टूरिस्ट हमारे पास 2019 में आए थे. इन इंडिया, द इंडियाज टूरिज्म हैज क्रिएटेड अराउंड 42.673 million jobs. It covers around 8.1% of its total employment. टोटल एम्प्लॉयमेंट जो इंडिया में दिया जा रहा है, उसमें से टोटल कंट्रीब्यूशन जो टूरिज्म का है, दैट इज 8%. Or this sector is predicted to grow at an annual rate of 6.9% to 32 lakh crore by 2028. 2028 तक उम्मीद है Indian tourism will touch 32 lakh crore of earning 2028 तक, जो पूरा का पूरा कम से कम 9.9% जीडीपी का एक बहुत ही
वास्ट हिस्सा होगा। ठीक, इस डेटा के साथ फिर मैं कुछ टूरिज्म कॉन्सेप्ट्स के बारे में यहाँ पे कुछ पॉइंट शेयर करना चाहूंगा। एज आई टोल्ड अर्लियर, tourism is a most vibrant and growing and economically useful activities. As you know, there are a number of countries who are totally dependent on their tourism for their economies, like Switzerland. They are not having any kind of they are not having any kind of vast industrial structure. They are totally dependent on tourism. तो somehow कहीं ना कहीं किसी न किसी कंट्री के लिए ये इकोनॉमिकली एक यूजफुल एक्टिविटी है, और हम भी कहीं ना कहीं उससे अछूते नहीं है। The country like we have in India, we have a number of tourism resources. We have a number of resources which are potentially, potentially great to attract number of tourists. Okay, tourism comprises many industries. As I quoted an example few minutes back, मैंने एक रिक्शा वाले का एग्जांपल दिया, साथ ही मैंने एक कियोस्क का एग्जांपल भी दिया, एक रोड साइड ईटरीज हैं उनका भी एग्जांपल्स दिया। इवन जो आपके मोबाइल टॉयलेट्स हैं या जो भी टॉयलेट्स हैं, ये जो छोटी छोटी एलिमेंट्स हैं, ये छोटी छोटी जो इंडस्ट्रीज हैं, ये वो इंडस्ट्रीज हैं जो समड अप होके इंटायर टूरिज्म इंडस्ट्री को क्रिएट करते हैं। ठीक, अब मैं यहाँ पे जो हमारे बड़े बड़े कंपोनेंट्स हैं उसको हम अभी मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये छोटी छोटी इंटरमीडियरीज जो हैं, इवन जो नाव चलाने वाला है डल लेक में, वो भी कहीं ना कहीं एक इंडस्ट्री का हिस्सा है। जो भुट्टा बेचने वाला है मसूरी में, इट्स अगेन अ पार्ट ऑफ इंडस्ट्री। टूरिज्म entirely comprises number of industries. It comprises accommodation, it comprises transportation industry, food service industry, attraction, entertainment and recreation. Somehow tourism exist तभी करता है जब ये सारे एलिमेंट्स, इनसे सारी इंडस्ट्रीज एक साथ होके कैटर करती हैं टूरिस्ट को। फर्दर इफ यू टॉक अबाउट डेफिनेशन ऑफ टूरिज्म, कि बेसिकली कैसे हम टूरिज्म जो टर्म है उसको हम डिफाइन कर सकते हैं, तो जो डेफिनेशंस प्रोवाइड करी गई हैं UNWTO के थ्रू, यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू, जिसका हेडक्वार्टर मैड्रिड स्पेन में सिचुएटेड है, और राइट नाउ UNWTO हैज 159 मेंबर्स। टूरिज्म इज अ टेम्पररी शॉर्ट टर्म मूवमेंट ऑफ पीपल। बेसिकली इट इज अ टेम्पररी। पहले इस चीज को समझने की जरूरत है कि कब हम कह सकते हैं कि टूरिज्म हमारी एरिया में एग्जिस्ट करता है, या किसी पर्टिकुलर स्पॉट में टूरिज्म एग्जिस्ट करता है, या टूरिस्ट यहाँ पे आता है। उसको समझने, उसको जानने से पहले जरूरी है कि टूरिज्म जो टर्म है हम उसको समझे, टूरिज्म जो एक्टिविटी है उसको हम समझे। तो इट इज बेसिकली अ शॉर्ट टर्म टेम्पररी मूवमेंट ऑफ पीपल टू आ डेस्टिनेशन। किसी भी डेस्टिनेशन पे के लिए आपका एक टेम्पररी शॉर्ट टर्म मूवमेंट है, फ्रॉम द प्लेस यू लिव एंड यू वर्क। आपके घर से या आपके ऑफिस से, आपके घर से या आपके ऑफिस से जब आप एक शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए बाहर निकलते हैं किसी डेस्टिनेशन के लिए, और उस डेस्टिनेशन पे जाके आप कम से कम 24 घंटे बिताते हैं, कम से कम 24 आवर्स स्टे करते हैं, और उसके साथ साथ वहाँ स्पॉट्स में उस डेस्टिनेशन पे आप बाकी एक्टिविटीज में भी इन्वॉल्व होते हैं, रिक्रिएशनल एक्टिविटीज, एंटरटेनमेंट एक्टिविटीज, फूड सर्विस, फूड आप अवेल करते हैं। ये सारी एक्टिविटीज मिल के फॉर्म करती हैं टूरिज्म एक्टिविटी को, टूरिज्म प्रैक्टिस को। वी कैन से कि टूरिज्म इज अ टेम्पररी शॉर्ट टर्म मूवमेंट ऑफ पीपल फ्रॉम द प्लेस दे लिव एंड वर्क टू अ डेस्टिनेशन, and they stay at least for 24 hours, and apart from these their activities during their stay included summed up the entire practice of tourism. तब हम कह सकते हैं कि yes, tourism कहीं exist करता है। Further, it is important to understand that is what is tourist. tourism हमने समझ लिया, अब टूरिस्ट क्या होता है, जैसे मैंने इस डेफिनेशन में कोट किया। टूरिस्ट हम उसी विजिटर को कहेंगे जो किसी प्लेस को विजिट कर रहा है और एटलीस्ट एक नाइट वहां पे स्टे कर रहा है। मीन्स अ पर्सन हु स्टे इन अ प्लेस और इन अ डेस्टिनेशन विजिटेड एंड स्टे एटलीस्ट फॉर 24 आवर्स और मे बी और अ नाइट, that would be called tourist.
कोई पर्सन जो ट्रेवल कर रहा है एक स्पॉट से दूसरे स्पॉट को या एक स्पॉट से किसी डेस्टिनेशन को, लेकिन 24 घंटे से पहले पहले वो रिटर्न हो जा रहा है अपने ऑफिस या अपने होम टाउन में, तो उसको हम टूरिस्ट रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे, उसको हम कहेंगे एक्सकर्जनिस्ट। एक्सकर्जनिस्ट is the person who travel for a period less than 24 hours. That is excursionist. Tourist is something different. Further tourism को हम दो तरीके से कैटेगराइज कर सकते हैं, इंटरनेशनल टूरिज्म और डोमेस्टिक टूरिज्म। इंटरनेशनल टूरिज्म को फिर हम दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, इनबाउंड एंड आउटबाउंड। इनबाउंड मीन्स द पीपल, द टूरिस्ट who, if the people and tourists came from other countries to India, it would be inbound tourism. And outbound tourism, if any Indian visit foreign countries, वो हमारे लिए outbound tourism है। ऐसे ही डोमेस्टिक टूरिज्म है। डोमेस्टिक टूरिज्म जो आपकी कंट्री की टेरिटरी में ही एग्जिस्ट करता है, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में टूरिस्ट विजिट करते हैं, वहां पे टूरिज्म एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होते हैं, तो उसको हम कंसिडर कर सकते हैं टूरिज्म, डोमेस्टिक टूरिज्म। फर्दर आई वुड लाइक टू कि शेयर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टूरिज्म इंडस्ट्री, कि टूरिज्म इंडस्ट्री के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। See, we all are the people belongs to hospitality industry, and we know the characteristic of tourism industry, कि हमारी टूरिज्म के कैरेक्टर्स क्या होते हैं। very briefly मैं कोट करना चाहूंगा। नंबर 1, सीजनैलिटी, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सीजनैलिटी एंड वेरी कि वी ऑलरेडी नो कि किस तरीके से सीजनैलिटी हमारे टूरिज्म प्रोडक्ट्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। ठीक, इसमें एग्जांपल कोट करने की जरूरत नहीं है। हम जानते हैं कि ऑब्वियसली मसूरी जब हम जाते हैं तो कोशिश करते हैं कि समर्स में जाएं, जब प्लेन्स हमारे ज्यादा गर्म होते हैं तो हम हिल स्टेशन पे जाना पसंद करते हैं। लेकिन ऑन द अदर हैंड जब वहां पे विंटर आता है तो डेफिनेटली हम बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं कि हम मसूरी, धनौल्टी जैसी डेस्टिनेशंस पे जाएं। दिस समहाउ मसूरी इज अ काइंड ऑफ टूरिज्म डेस्टिनेशन, इज अ काइंड ऑफ टूरिज्म प्रोडक्ट। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से टूरिज्म प्रोडक्ट एक सीजनैलिटी का कैरेक्टर रखता है अपने अंदर। सेकंड, हम कह सकते हैं हाई रेशियो ऑफ फिक्स टू वेरिएबल कॉस्ट। सेम आप इसको कोरिलेट कर सकते हैं सीजनैलिटी से। डेफिनेटली अगर आप विजिट करेंगे शिमला को समर्स में, तो डेफिनेटली हो सकता है कि आपको वहां पे के जो प्रोडक्ट एंड सर्विसेज के लिए चार्जेस लिए जाएं वो बिट हायर हो कंपेयर टू नवंबर और दिसंबर, जब विंटर ज्यादा होता है, स्नोफॉल नहीं होता है शिमला में। तो डेफिनेटली आपको एक ही प्रोडक्ट के दो रेट देखने को मिलेंगे। विंटर वो वाला टाइम होगा जब आपको प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज की कॉस्ट में फर्क दिखेगा, आपको फ्लेक्सिबिलिटी मिलेगी। बट during peak season, definitely we may have a fixed cost while making our product and services। definitely पीक सीजन में हमें डेफिनेटली थोड़ा एक फिक्स्ड कॉस्ट लेके चलना होगा, क्योंकि वो टाइम है आपके पास जब आपके पास पोटेंशियल कस्टमर्स मैक्सिमम नंबर पे आता है। जब आपके पास पोटेंशियल कस्टमर मैक्सिमम नंबर में नहीं आता है जिस सीजन में, तो डेफिनेटली आपकी जो कॉस्ट इनकर्ड होगी वो वेरिएबल। नेक्स्ट इज द प्राइसिंग फ्लेक्सिबिलिटी। ऑब्वियसली पीक सीजन एंड ऑफ सीजन डेफिनेटली आपके प्राइसेस वेरी करेंगे, फ्लेक्सिबल भी करेंगे, और साथ ही आपके पास अगर एक वॉल्यूम, अच्छे वॉल्यूम में बिजनेस एट ए टाइम मिल रहा है तो डेफिनेटली आप प्राइस को कम ज्यादा कर सकते हो। भाई आई मीन टू से कि अगर आप 50 लोगों का ग्रुप एक साथ लेके आए हो तो डेफिनेटली आपको हो सकता है रूम के चार्जेस या फूड एंड बेवरेज के चार्जेस कम पड़े कंपेयर टू आप 2 लोग एक साथ आए। तो मीन्स कि समहाउ ये कैरेक्टर भी, प्राइसिंग फ्लेक्सिबिलिटी का कैरेक्टर भी हमारी टूरिज्म इंडस्ट्री रखती है, टूरिज्म के प्रोडक्ट्स रखते हैं। फ्लक्चुएटिंग डिमांड, डेफिनेटली जो टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी के प्रोडक्ट्स हैं दे फ्लक्चुएट देयर डिमांड्स। एग्जाम्पल, एक सीधा साधा सा एग्जाम्पल है, हिल स्टेशन का एग्जाम्पल है। ऑब्वियसली अलग साल के अलग अलग महीनों में अलग अलग तरीके की डिमांड उन टूरिस्ट डेस्टिनेशन से आती है, हिल स्टेशन। ठीक, अगली कैरेक्टर की तरफ अगर हम बढ़े
पेरिशेबल नेचर ऑफ प्रोडक्ट, पेरिशेबल डेफिनेटली जो टूरिज्म प्रोडक्ट होते हैं आपके, या टूरिज्म सर्विसेज या हॉस्पिटैलिटी प्रोडक्ट एंड सर्विसेज है, दे आर वेरी मच पेरिशेबल। अगर आपका कोई होटल का रूम आज सेल नहीं हुआ है तो डेफिनेटली आज का रेवेन्यू आप कभी भी अर्न नहीं कर सकते हैं। आज अगर आपकी टूरिस्ट डेस्टिनेशन कोई सेल नहीं हुई है, आपने टूरिस्ट को अट्रैक्ट नहीं किया है आज 27 सितंबर को, तो डेफिनेटली 27 सितंबर 2021 का रेवेन्यू आप कभी भी अर्न नहीं कर पाएंगे। मीन्स आपके वो प्रोडक्ट बहुत ही ज्यादा पेरिशेबल है अगर वो टाइमली सेल नहीं होते हैं। नेक्स्ट कैरेक्टर इज रोल ऑफ इंटरमीडियरीज। Intermediaries play a very important role as we know, for example tour operators, travel agencies। ये वो लोग हैं आज की डेट में, आप देखते हैं कि मुझे अगर यूएस में विजिट करने जाना है तो डेफिनेटली मैं एक बार यूएस जाऊंगा, या फिर वहां पे होटल में रूम बुक करूंगा, फिर वहां पे कार रेंटल के लिए किसी से कांटेक्ट करूंगा। ये पॉसिबल नहीं है। मैं सीधे गूगल में जाके एक ऑनलाइन ट्रेवल एजेंसी को अप्रोच करता हूँ। ऑनलाइन ट्रेवल एजेंसी मेरे लिए घर बैठे बैठे एक क्लिक पे सारे फीचर्स मेरे को प्रोवाइड कर देती है। पूरा डिफरेंट पैकेजेस मुझे प्रोवाइड कर देती है। जो मुझे अच्छा लगता है मैं पैकेजेस ऑप्ट कर सकता हूँ। मेरे को कार हायर करनी है, मेरे को लिमो हायर करनी है, मेरे को स्विफ्ट हायर करनी है, मेरे को मैक्लेरन हायर करनी है, पजेरो हायर करनी है, मैं किसी भी कार रेंटल कंपनी को अप्रोच कर सकता हूँ। तो ये वो इंटरमीडियरीज है। इवन वो तांगे वाला भी इंटरमीडियरीज का हिस्सा है, इवन वो पानीपुरी वाला भी इंटरमीडियरीज का हिस्सा है, गाइड है, एस्कॉर्ट्स है, ऑल दीज आर द इंटरमीडियरीज। इनके बगैर टूरिज्म एक्टिविटीज एग्जिस्ट नहीं करती है। तो इंटरमीडियरीज बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारे टूरिज्म इंडस्ट्री में। ओके, एंड द लास्ट कोट, एक छोटा सा टॉपिक है कंपोनेंट्स ऑफ टूरिज्म इंडस्ट्री, उसको लेते हुए मैं अपना वक्तव्य फिनिश करता हूँ कि टूरिज्म इंडस्ट्री जो है हमारी, जो वाइब्रेंट इंडस्ट्री है, उसके कंपोनेंट्स क्या है। बेसिकली कंपोनेंट्स लाइक अट्रैक्शन दो तरीके की हो सकते हैं, government organizations, obviously government organizations like UTDB, State Tourism Board, Ministry of Tourism, IHMs, like we people. Somehow we also contribute, and we are the components of this kind of vibrant tourism industry. Intermediaries, जैसे मैंने बताया, intermediaries एक important role play करते हैं। Transportations, without transportations, tourists cannot move from here to another place. That is why the transportation play a crucial role. Then accommodation, next is entertainment, then shopping, recreational activities. ये सारे tourism industry के components. That's all from my side. And again, I would like to wish all the key players of the hospitality and tourism industry. Wish you have a wonderful year ahead in tourism, and God bless you all. Thank you very much. Over to you, Hitesh sir. Thank you very much, Mr. Sir. Now, I would like to request Mr. Pradeep Negi to continue further with the topic of social and economic benefits of tourism. Over to you, Pradeep sir. धन्यवाद हितेश सर। सम्मानित डायरेक्टर सर, मेरे सहकर्मी एवं प्यारे बच्चों, आज वर्ल्ड टूरिज्म डे के शुभ अवसर पर हम सभी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से एकत्रित हुए हैं। इस वर्ष का थीम जो कि UNTWTO द्वारा रखा गया है वो है टूरिज्म फॉर इंक्लूसिव ग्रोथ। इस पर आगे प्रकाश डालते हुए मैं आप सभी के साथ सोशल एंड इकोनॉमिकल बेनिफिट्स ऑफ टूरिज्म पर अपनी बात रखना चाहूंगा। सोशल मतलब सामाजिक, और आप इकोनॉमिक मीन्स आपकी आर्थिक व्यवस्था। तो किस तरह से सामाजिक एवं आर्थिक व्यवस्था हमारे पर्यटन को फायदा पहुंचाती है। अगर हम बात करें, टूरिज्म एक अपने आप में बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरे विश्व में। और ज्यादातर अगर आप देखेंगे वैश्विक जो देश है वो काफी ज्यादा इससे
अपना रेवेन्यू जो है उससे अर्न करते हैं। कुछ कंट्रीज की जीडीपी की मैं बात करूं, जैसे कि मालदीव्स जो है वो 38.92 जीडीपी उसकी टूरिज्म के बदौलत आती है आपकी। ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड जो है 32.96, मकाओ आपका 28.5, अरुवा आपका 27.64। तो ये सारी जो इनकी जीडीपी की ग्रोथ है, दैट इज ऑल बिकॉज ऑफ द टूरिज्म। पर्यटन शब्द का अर्थ संक्षिप्त में अगर मैं कहूं तो जो व्यक्ति विस्तृत भूभाग पर घूमने वाला है, भ्रमण करने वाला हो, उसको मैं पर्यटन कहता हूं। पर्यटन एक तरफ जहां हमारे जीवन में खुशियां देता है, वहीं दूसरी तरफ देश को सामाजिक एवं आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आज प्रत्येक देश पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए पर्यटन उद्योग को विशेष महत्व दे रहा है, जिसकी वजह से काफी देशों की अर्थव्यवस्था काफी सुदृढ़ हुई है। पर्यटन से किसी देश में रहने वाले लोगों के जीवन स्तर तथा रहन सहन की स्थिति में महत्वपूर्ण सुधार लाए। इससे काफी रोजगार विसर्जन हुआ है, जो कि एक बहुत ही बड़ा महत्वपूर्ण कारण है उस जगह का इकोनॉमिकल ग्रोथ को बढ़ावा देने के लिए। यही नहीं, सामाजिक क्षेत्रीय लिंग भेद की असमानताओं को दूर करने की दृष्टि से भी पर्यटन प्रभाव डालता है। उदाहरण के लिए अगर हम अपने उत्तराखंड की बात करें तो अभी आप देख रहे होंगे कि कोविड 2 साल से कोविड है और काफी लोगों की अर्थव्यवस्था पे इसका काफी ज्यादा प्रभाव पड़ा है। और इसमें परिवार को सुदृढ़ एवं इकोनॉमिकल स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए दोनों मेल और फीमेल जो सदस्य हैं परिवार के, वो दोनों मेहनत कर रहे हैं और वो उसमें किसी भी प्रकार के रोजगार में अगर आप देखेंगे पर्यटन से जो जुड़े हुए हैं, उसमें वो अपना चाहे छोटा रोजगार हो चाहे बड़ा रोजगार हो, उसमें वो अपना घर के आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करने में मदद कर रहे हैं। जैसे कि अभी आप देखे होंगे कि और हम लोगों ने ट्रेनिंग भी दी है महिला समूह को, और अभी हम भविष्य में भी महिला समूह को ट्रेनिंग देने जा रहे हैं। तो पर्यटन विभाग भी इसमें काफी सहयोग कर रहा है और पर्यटन विभाग इसमें महिलाओं को भी आगे बढ़ा रहा है ताकि वो अपने घर की आर्थिक स्थिति को, अपनी सामाजिक स्थिति को सुदृढ़ कर सके। तो इसमें महिलाएं काफी प्रतिभाग भी कर रही हैं और जैसे कि वो लोग अपने पर्यटन अपने आवास किराए को भी उनको दे रहे हैं ताकि वो महिला समूह उनको चलाएं और अपनी आर्थिकी और अपने सोशल वेलफेयर में अपनी उन्नति कर सके। होम स्टे का आप देख रहे हैं काफी कंसेप्ट जो उत्तराखंड गवर्नमेंट द्वारा लाया जा रहा है, उसमें भी हमारी आर्थिकी मजबूती हम लोगों को काफी ज्यादा मिल रही है। और 5000 होम स्टे का लक्ष्य था 2020 तक उत्तराखंड सरकार का, जो कि थोड़ा कोविड की वजह से ये थोड़ा सा इसमें रुकावट आई है और भविष्य में हम सोचते हैं कि ये बहुत जल्द पूर्ण कर लिया जाएगा। न केवल 5000 से ज्यादा होम स्टे उत्तराखंड में हमें देखने को मिलेंगे और इससे पारिवारिक की स्थिति में भी काफी अच्छा सुदृढ़ आपकी उनकी व्यवस्था हो पाएगी। कोविड 19 की वजह से काफी दिक्कतें आई हैं हमारे आर्थिक स्थिति में, लेकिन अभी जिस स्थिति में मैं अपने स्टेट या अपने देश की बात करूं तो काफी इम्प्रूव किया है हम लोगों ने और पर्यटन एक बार से फिर से शुरू हो चुका है। और इवन आपने देखा होगा कि अभी हमारा जो पर्यटन स्थल है केदारनाथ, बद्रीनाथ, यमुनोत्री और गंगोत्री जो 4 धाम है, वहां पे भी यात्रा शुरू हो गई है और इससे जो वहां के लोकल नेटिव लोग हैं उनकी भी आर्थिक स्थिति में काफी सुधार देखने को मिलेगा।
पर्यटन हमारे वैल्यू सिस्टम, हमारे इंडिविजुअल बिहेवियर, हमारे फैमिली रिलेशनशिप, हमारे लाइफ स्टाइल, हमारे क्रिएटिव एक्सप्रेशन आदि में काफी बदलाव लेकर के आता है। क्योंकि जब पर्यटक हमारे यहाँ आता है तो हमें बहुत कुछ उससे सीखने को मिलता है, हमें बहुत कुछ उससे देखने को मिलता है, हम उसके व्यवहार को समझते हैं, उससे बात करते हैं, हम इंटरेक्शन करते हैं, तो काफी चीजें हम एक दूसरे से समझते हैं, हम उनके सोशल जो कल्चर है हम उनका जानने का प्रयास करते हैं और वो हमारा सोशल कल्चर को जानने का प्रयास करते हैं। तो इस तरह का ये बहुत काफी सालों से ये एंसेस्टर टाइम से ये हमारा चल रहा है और इससे हमारा एक आत्मिक संबंध भी हमारा काफी ज्यादा इससे बनता है। और बहुत बार हमने देखा है कि पर्यटक जब दोबारा वापस उसी डेस्टिनेशन में आता है तो उसको उसी जगह में रहना वो ज्यादा पसंद करता है, क्योंकि वो उसका एक आत्म संबंध उनके साथ, उस परिवार के साथ या उन लोगों के साथ उनका बन जाता है और वो उन्हीं के साथ रहना ज्यादा पसंद करते हैं। पर्यटन हमारे कल्चरल अंडरस्टैंडिंग, हमारे एम्प्लॉयमेंट, हमारे एलिवेशन ऑफ पॉवर्टी, प्रिजर्वेशन ऑफ लोकल कल्चर, इन सभी चीजों में भी काफी मदद हमें करता है। उत्तराखंड में अगर आप देखें तो पर्यटन की काफी संभावनाएं हैं और इसमें सरकार भी निरंतर प्रयास कर रही है। जैसे मैंने आपको बताया कि महिला समूह को वो काफी ज्यादा प्रमोट कर रही है, होम स्टे को काफी ज्यादा प्रमोट कर रही है, तो इससे हमारा सामाजिक एवं इकोनॉमिक जो हमारी कंडीशंस हैं वो काफी ज्यादा इसमें इम्प्रूव हो रही है। क्योंकि अगर आप देखें दूरस्थ जगह काफी पर्यटक क्षेत्र हैं जहाँ पे अभी पूर्ण रूप से हमारी सड़क, बिजली और पानी की व्यवस्था वहाँ पे उपलब्ध नहीं है, लेकिन पर्यटक काफी ट्रैक्स है हमारे यहाँ जिसमें अभी भी लोग जाते हैं और वहां पर जो लोकल जो नेटिव हैं वो काफी उनको हेल्प करते हैं, उन्हें मदद करते हैं और उनके द्वारा, उनकी मदद के द्वारा वो लोग उस जगह का आनंद वो ले पाते हैं। पर्यटन से न केवल हमारे क्षेत्र का विकास होता है अपितु हमारा विकास भी होता है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम एक दूसरे को कल्चर को हम लोग देखते हैं, समझते हैं, उनके व्यवहार, उनके बातचीत को हम देखते हैं और समझते हैं, तो उन चीजों का भी काफी ज्यादा असर हमारे क्षेत्र में पड़ता है। अगर आप देखेंगे बनारस का, मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है मेरा, जब मैं अपना इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग कर रहा था क्लास वाराणसी से, तो मैं और मेरे साथी जो वहाँ पे ट्रेनिंग कर रहे थे, उस दौरान हम लोग सुबह के समय में 80 घाट जो है वहां पे जाते थे और उधर हम लोग ये कहिए कि सूर्य का जो अपना सुबह का जो सूर्य जब उगता है तो वो देखने में अपना एक अद्भुत ही आपको देखने नजारा देखने को मिलता है। और वहां पे हम लोग जब हम बैठे रहते थे तो हम ये देखते थे कि कुछ बच्चे वहां पे हमें मिलते थे जो 8 या 10 साल या 11 साल के ज्यादा नहीं उनकी उम्र रही होगी, और कभी मुझे लगता नहीं है कि वो कभी स्कूल भी गए होंगे, लेकिन उनकी अगर आप इंग्लिश सुनेंगे या कोई दूसरी इंटरनेशनल लैंग्वेज को अगर आप सुनेंगे उनके मुंह से, तो आपको विश्वास नहीं आएगा कि वो इस तरह की लैंग्वेजेस बोल सकते हैं या वो उसी बच्चे ने बोला है। तो ये हमारा क्या होता है कि जब हम एक सामाजिक लोगों के साथ मिलते हैं, आप देखें काफी फॉरेनर्स वहाँ पे आते हैं और काफी फॉरेनर्स का इन्फ्लुएंस वहाँ पे बच्चों के साथ इंटरेक्शन होता है, और बच्चे जब उनसे पूछा जाता है कि क्या आप कहाँ से सीखे, तो वो सिर्फ एक ही चीज कहते हैं कि जो कुछ मैंने सीखा है मैंने सिर्फ हाट में लोगों से, जो विदेशी लोग यहाँ पे पर्यटक लोग घूमने को आते हैं उन्हीं से मैंने सीखा है और उन्हीं से मेरे को ये सब चीजें सीखने को मिली है। आज हम देख रहे हैं कि हमारे देश में या हमारे उत्तराखंड में अगर आप देखें तो केदारनाथ आपदा के बाद जब सब तहस नहस हो गया था, तो उसके डेवलपमेंट में अगर आज आप देखें तो काफी डेवलपमेंट उस एरिया में हुआ है, और जो हजारों और लाखों की तादाद में लोग जो वहां पे आते थे, आज वहां पर ये स्थिति है कि लोग
लोगों को रोका जाता है वहां पे, क्योंकि एक जो सुदृढ़ ढांचा जो अभी तैयार हो रहा है और भविष्य में वो तैयार होगा, तो उससे पर्यटन की संभावनाएं और ज्यादा वहां पर हमें देखने को मिलेगी। इससे न केवल आम जनता, आम जनमानस को फायदा पहुंचता है, बल्कि सरकार को भी इससे काफी ज्यादा रेवेन्यू हमें प्राप्त होता है। तो ये दोनों, आम जनमानस और सरकार दोनों के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद है। तो पर्यटन को हमें बढ़ावा देना चाहिए और पर्यटन के लिए हमें अपने प्रयास करने चाहिए कि अपने हमारे क्षेत्र में अगर कोई पर्यटन स्थल है तो उसमें हम ऐसे होटल मैनेजमेंट टीम या जैसे जिस तरह से हम लोग मदद भी करते हैं, सरकार की विभिन्न योजनाओं में सहयोग करते हैं, उस तरीके से हम अपने जो नियर बाय हमारे क्षेत्र है उसमें भी हमें लोगों को भी मदद करनी चाहिए और लोगों को हमें बढ़ावा देना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ सभी का धन्यवाद एवं आभार। Thank you very much, sir. Now, I would like to request Mr. Deepak Rawat to please speak on the topic of role of hospitality institutions and it in sustainable development regression approach. Over to you, Deepak, sir. Thank you, Hitesh sir. Am I audible? Yes, sir. Okay, so wish you all a very happy World Tourism Day. Respected Director sir, dear faculty members and all the students who are present here. I am Deepak Rawat and my topic has already been discussed is about the role of hospitality for the sustainable tourism development with the regressive approach. So most of the basic concept about the tourism have already been discussed, and now I would like to tell about the sustainable development. What is sustainable development? If we go through for the sustainable development, we must have to look for the four basic concepts, and that is related to we should buy local, we should respect the local culture, we should save energy and protect our heritage. So if we talk about the sustainable development phenomena, which is having a quite common debate when it was started, and it was generally started in the year 90s. We cannot say about the exact date and exact time for the phenomenon when it was started. However, the origin of the sustainable development, it is having a wider concept, and it has been with us for the many centuries. And if we talk about sustainable development, by the sustainable development we generally means the development to meet our need for today without compromising the ability of people in the future to meet their need. It is thus about taking a longer term perspective than is unusual in the human decision making, and implies a need for the intervention and planning. The concept of sustainability clearly embraces the environment, people and the economic system. अगर हम sustainable development की बात करें तो generally हमें इसमें टूरिज्म को हमें डेवलप करना है, बट हमें ये देखना है कि इन्वायरमेंट को, लोगों को और साथ ही साथ जितनी भी रिसोर्सेज हैं उनको किसी तरीके का इसमें कोई नुकसान ना पहुंचे। जनरली जो आपका सस्टेनेबल टर्म है वो लगभग आपका 20-30 साल पहले जनरली ये स्टार्ट किया जा चुका है आपका 90s में, और इसमें कई सारे जो है पहले से अटेम्प्ट्स भी किए जा रहे हैं ताकि जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है सिटीज में, टाउन्स में, उसको एक प्लान तरीके के साथ जनरली डेवलप किया जा सके। फॉर एग्जांपल जैसे जो रोमन एम्पायर्स के टाइम पे जनरली जिस तरीके से डेवलपमेंट हुआ था, लाइकवाइज हम जनरली देखते हैं हमारे एग्रीकल्चर सिस्टम के अंदर भी। तो जनरली जो हमारा ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर सिस्टम है जो कि उसका भी प्रिंसिपल जो है वो सस्टेनेबिलिटी के ऊपर ही बेस्ड है। तो फार्मिंग जनरली विच इज कैरिड आउट इन अ वे
which preserved rather than destroyed the productive capacity of the land. यानी कि जो हमारी आने वाली जनरेशन है उनके लिए भी जनरली हम उसको प्रिजर्व करके रख सकें, इस तरीके का जनरली सस्टेनेबल डेवलपमेंट होना चाहिए। और यही आपका जो टूरिज्म है, टूरिज्म फील्ड के अंदर भी आ जाता है। अब तो ये तो जनरली हमारा आपका सस्टेनेबल का एक तरीके से मीनिंग आ गया इसमें। इसमें ही हम आगे डिस्कस करेंगे जो आपका अलग अलग कंपोनेंट्स हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट के, तो वो जनरली हमारे अडेप्ट हुए थे आपके जनरली 1987 में, जिसमें अलग अलग कंपोनेंट्स जो है वो इस तरीके से है। फर्स्ट इज द एस्टैब्लिशिंग ऑफ इकोलॉजिकल लिमिट more equitable standard, which require the promotion of values that encourage consumption standard that are within the bound of the ecological possible and to which all can have the reasonably aspire। तो जनरली हमें इसमें इकोलॉजिकल लिमिट सेट करनी है और उसमें आपका इक्विटेबल स्टैंडर्ड आपका जनरली अगर आप उसमें स्टैब्लिश करने में कामयाब रहते हैं तो इट इज वन ऑफ द बेसिक कंपोनेंट for the sustainable development. Then second is about the redistribution of economic activity and reallocation of the resources. Meeting the essential need depend in the part on achieving full growth potential, and sustainable development clearly require economic growth in place where such need are not being met. Then we have another component that is of the population control. Though the issue is not merely one of the population size, but the distribution of the resources, sustainable development can be pursued if demographic development are in the harmony with the changing productive potential of the ecosystem. Then conservation of the basic resources, that is the sustainable development must not endanger the natural system that support life on earth, that is the atmosphere, water, the soil, and the living being. The next component is more equitable access to the resources. Growth has set no limit in terms of the population or resources used beyond which lies ecological disasters. But ultimately limits are there, and sustainability require that long before these are reached, efforts are made to ensure more equitable access to the resources. Then carrying capacity and sustainable yield. Most renewable resources are the part of complex and interlinked ecosystem, and the maximum sustainable yield must be defined after taking into the account system wide effect of the exploitation. We also have to retention of the resources. Sustainable development require the rate of depletion of non-renewable resources foreclose as few future option as possible. Then minimum adverse impact. Sustainable development require that adverse impact on the quality of air, water, and the other natural element are minimized so as to sustain the ecosystem overall integrity. And diversification of species. Sustainable development require conservation of the plant and the animal species, all the flora and fauna. Community control over the development decision affecting the local ecosystem. Then broad national and international policy framework. Biosphere is the common home for all kind of the humankind, and joint management of the biosphere is prerequisite for the global political security. Then economic viability. Communities must pursue economic well-being while recognizing that government policy may set to material growth. Then environmental quality. Corporate environmental policy is the extension of total quality management. And then finally, we have the environmental audit. An effective environmental audit system is the heart of good environmental management and the main component of the sustainable development, as largely defined by the particularly in the year 1982s in the report of Brundtland, and which is generally interpreted and led by the Murphy. So this was about the common sustainability
development in the prospect of tourism development. And the role of institution is very important, as the institution play a very important role in the part of education, as already been discussed by earlier. Mr. Pradeep sir has already discussed that the education system in our particular institution, if we talk about, we have already given the essential homestay training, and we have adopted some of the villages where we visit and provide education, and generally give the awareness message by generally taking the classes and visiting their places. So this way, and also as a part of our curriculum, also the tourism is the main subject in the whether if we talk about the bachelor degree course or the master degree course, it is the foundation course in the curriculum where the students must have to undergo the training of tourism. So we are generally producing the hospitality and the tourism professionals, and this way the hospitality institutions is playing a very important role for the development, and of course about the sustainable development of the tourism over here in the institutions. So with these words, I would like to finish off, and over to you, Hitesh sir. Thank you very much. Yes, Hitesh sir. Thank you very much, sir. Thank you. Now, I would like to request Mr. Abhishek Chauhan to speak on the topic capacity building. Over to you, sir. All right, Hitesh, thank you so much. Am I audible to all? Am I audible? Yes, sir. All right. Thank you so much. Yes, sir. First of all, I would like to wish a very warm good afternoon to respected director, sir, my fellow colleagues again, the fraternity of tourism, and all the stakeholders, even the students who are involved in this webinar. I would like to express my gratitude on the behalf of State IHM, and I would like to wish you all a very happy World Tourism Day. As we know, the theme for this year, as decided by UNWTO, is Tourism for All Inclusive Growth. इसका मतलब क्या होता है इंक्लूसिव ग्रोथ? दैट मीन्स टूरिज्म इज मेंट फॉर द ग्रोथ ऑफ एंटायर कम्युनिटी. एंटायर कम्युनिटी की अगर मैं बात करूं तो उसमें आपके सारे सेक्शंस आ जाते हैं कम्युनिटी के, सारी ऑर्गेनाइजेशंस आ जाती हैं, सारे इंटरमीडिएट्स आ जाते हैं, जैसे कि जसवंत सर ने बताया था. इंटरमीडिएट्स में आपके सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं हु आर इन्वॉल्व इन टूरिज्म बिजनेस. सो दिस ईयर वी हैव फ्रेम्ड ऑन दिस थीम फॉर इंक्लूसिव ग्रोथ ऑफ ऑल द कम्युनिटी. बेसिकली इसी कंटेक्स्ट में मैं आज का जो टॉपिक है मेरा, आई विल स्पीक अबाउट दैट इज कैपेसिटी बिल्डिंग. एज वी नो दैट जो हमारी हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री है, जो हमारी होटल इंडस्ट्री है, इसमें आपके देयर इज अ लार्ज सेगमेंट ऑफ पीपल हु आर इन्वॉल्व इन दिस टूरिज्म इंडस्ट्री. एंड एज वी नो होटल इंडस्ट्री एंड टूरिज्म गो हैंड इन हैंड. टूरिज्म जितना ज़्यादा ग्रो करेगा, होटल इंडस्ट्री भी उतनी ज़्यादा प्रॉस्पर करेगी. सो दैट इज वाई दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर. अगर मैं कैपेसिटी बिल्डिंग की बात करूं तो जो आपका मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म है, सेंट्रल गवर्नमेंट, वो आपका एक स्कीम स्टार्ट करी है विच इज नोन एज CBSP. CBSP का फुल फॉर्म क्या होता है? कैपेसिटी बिल्डिंग फॉर सर्विस प्रोवाइडर्स. ये इंस्टीट्यूट्स की मैं बात करूंगा. इसमें हमने क्या करना है, जैसे कि हमें पता है कि जो हमारा होटल इंडस्ट्री है हमारा, दैट इज डिवाइडेड इनटू 2 सेक्टर्स. एक होता है हमारा ऑर्गेनाइज सेक्टर और एक होता है हमारा अनऑर्गेनाइज सेक्टर. तो ऑर्गेनाइज सेक्टर में हमारे सारे होटल्स आ जाते हैं, रेस्टोरेंट्स आ जाते हैं, और अनऑर्गेनाइज सेक्टर में आपके वो सारे, जैसे आपका अनऑर्गेनाइज सेक्टर में रोड साइड ढाबाज होते हैं, आपके ईटिंग प्लेसेस होते हैं, टिकटिंग एजेंसीज होती हैं जो आपके क्लासिफाइड नहीं है. तो इन सब में जो लोग आपके काम करते हैं, इन सब चीज़ों में ऑर्गेनाइजेशंस में जो आपका मैन पावर काम करता है, उनको भी आपने कुछ टेक्निकल इन्फॉर्मेशन देनी होती है. ये सारी चीज़ें किसके अंडर कवर होती हैं? आपकी कैपेसिटी बिल्डिंग फॉर सर्विस प्रोवाइडर्स के अंदर कवर होती है. अगर मैं बात करूं मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म की, तो जो आपकी सेंट्रल मिनिस्ट्री है टूरिज्म की और जो आपकी स्टेट गवर्नमेंट की टूरिज्म मिनिस्ट्री है, इन्होंने आपके अलग अलग इंस्टीट्यूट्स को दे हैव प्रोवाइडेड ग्रांट्स. आपके इंस्टीट्यूट्स को वो कुछ ऑथराइजेशन देते हैं कि इन लोगों को आपने ट्रेनिंग प्रोवाइड करवानी है. अगर मैं आज की बात करूं, एट प्रेजेंट मोमेंट देर आर two or 3 इंस्टीट्यूट्स विच प्रोवाइड ट्रेनिंग टू दीज पीपल. द फर्स्ट ऑफ देम इज IHMs, जैसे कि हम है IHM, इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट, और दूसरा है आपका FCI,
फूड क्राफ्ट ऑफ इंस्टीट्यूट। तो ये आपके अलग अलग स्कीम्स चलाते हैं, अलग अलग प्रोग्राम्स चलाते हैं, ताकि आपके जो लोग इन्वॉल्व हैं ऑर्गेनाइज सेक्टर में और अनऑर्गेनाइज सेक्टर में, उनको बेसिक एटिकेट सिखाए जाते हैं हॉस्पिटैलिटी के। ठीक है, अगर मैं बात करूं टूरिज्म की, तो टूरिज्म में आपके कई सारे बेनिफिट्स होते हैं, जैसे कि पहले डिस्कस किया गया था, प्रदीप नेगी जी ने बताया, जसवंत जाड़ा जी ने बताया। तो टूरिज्म के बेनिफिट्स आपके सबको होने चाहिए। ठीक है, टूरिज्म के बेनिफिट्स इसलिए तभी हो पाएंगे जब आपको बेसिक एटिकेट्स आपको टूरिज्म के पूरे क्लियर हैं, हॉस्पिटैलिटी के क्लियर हैं। ठीक है, जो लोग आपके अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करते हैं, जैसे कि आपका बस स्टेशन हो गया, रेलवे स्टेशन हो गया, या आपके इमिग्रेशन स्टाफ होता है एयरपोर्ट सेंटर्स में, दे शुड ऑल्सो हैव द बेसिक एटिकेट्स ऑफ हाउ टू डील विद द पीपल, हाउ टू डील विद द गेस्ट। ये जो लोग होते हैं ये टूरिस्ट के कॉन्टैक्ट में आते हैं, सर्विस प्रोवाइड करते हैं। अगर आपकी सर्विस अच्छी तरीके से प्रोवाइड करी गई है तो वो आपका एक पॉजिटिव इमेज बनाता है, और अगर आपकी सर्विस अच्छी तरीके से नहीं दी गई है तो वो आपका एक नेगेटिव इमेज बनाता है सर्विस प्रोवाइडर के प्रति। दैट इज वाई कैपेसिटी बिल्डिंग जो आपकी स्कीम है, इसमें आपके अलग अलग इंस्टीट्यूट्स क्या करते हैं, आपकी ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाते हैं अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लोगों को, बेसिक एटिकेट्स। अगर मैं बात करूं जो आपका मेन कंटेंट होता है कैपेसिटी बिल्डिंग के सिलेबस में, उसमें आपका हेल्थ एंड पर्सनल हाइजीन आता है, क्लीनिनेस आता है, बेसिक सर्विस टेक्निक्स आता है, कुकिंग टेक्निक्स आता है, गार्बेज डिस्पोजल आता है, बेसिक न्यूट्रिशन वैल्यूज आती है। इसके अलावा हम कम्युनिकेशन स्किल्स, बिहेवियरल स्किल्स, फर्स्ट एड, हैंडलिंग क्लाइंट्स, ये सब चीजें आपका डिस्कस किया जाता है कैपेसिटी बिल्डिंग के कोर्स में। ठीक है, तो आपका जो कोर्स हम इंस्टीट्यूट चलाते हैं ये आपका HSRT के नाम से जाना जाता है। इसको हम हुनर से रोजगार तक बोलते हैं। ये बेसिकली आपके सारे डिपार्टमेंट्स का होता है, लेकिन जो बेसिक फोकस होता है इनका ये फूड प्रोडक्शन पे होता है और फूड एंड बेवरेज सर्विसेज पे होता है। फूड एंड बेवरेज सर्विसेज में आपको बेसिक एटिकेट सिखाए जाते हैं। सबसे पहले आपकी ग्रूमिंग कैसी होनी चाहिए, जैसे कि आपको पता है इन होटल इंडस्ट्री ग्रूमिंग प्लेज अ वेरी वाइटल रोल। सो द फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, एज वी ऑल नो इन द होटल इंडस्ट्री। इसके लिए आपको बेसिक एटिकेट्स बताए जाते हैं फूड एंड बेवरेज में। आपने गेस्ट का ऑर्डर कैसे लेना है, गेस्ट को रिसीव कैसे करना है, गेस्ट का ऑर्डर प्लेस कैसे करना है, ये सारी चीजें आपको फूड एंड बेवरेज सर्विस के करिकुलम में बताई जाती हैं। और फूड प्रोडक्शन के करिकुलम में आपको कुकिंग मेथड सिखाए जाते हैं, आपका कैसे फूड न्यूट्रिशनल वैल्यू क्या है, उसका न्यूट्रिशनल एस्पेक्ट क्या है, कैलोरिफिक वैल्यू क्या है आपकी डिशेस की, ये सारी चीजें आपको बताई जाती हैं इस स्कीम के अंडर। तो ये तो था आपका इंस्टीट्यूट्स में जो आपका प्रोग्राम रन किया जाता है। इसके अलावा आपके जो इंस्टीट्यूट्स होते हैं, व्हाट दे डू, दे अडॉप्ट सर्टेन विलेजेस नियर बाय। जैसे कि आपको पहले प्रदीप सर ने भी बताया था, हमने भी क्या किया है IHMTD ने, वी आर प्राउड टू से दैट वी हैव अडॉप्टेड 5 नियर बाय विलेजेस ओवर हेयर। तो यहाँ पे हम उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड कराते हैं, जो विलेजर्स हैं उनको बेसिक एटिकेट सिखाए जाते हैं, ताकि वो गेस्ट जो भी हैं, जो अगर उन्होंने कोई होम स्टे स्टार्ट किया है तो वो गेस्ट को रिसीव कर सके और वेलकम कर सके अपने स्टैंडर्ड्स के हिसाब से। तो कैपेसिटी बिल्डिंग आपका बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, स्टेट गवर्नमेंट का, स्टेक होल्डर्स का, और मैं इसके लिए अप्रिशिएट करना चाहता हूं सबको। ठीक है, तो दिस वाज समथिंग अबाउट कैपेसिटी बिल्डिंग। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, आई वुड लाइक टू से अ फ्रेज बेसिकली which is related to tourism traveling. I'll say that age is just a number unless until you stop traveling. तो आपकी ट्रैवलिंग हमेशा रहनी चाहिए। और जैसा कि पहले भी डिस्कस हुआ था, जो आपकी कोविड-19 की रेस्ट्रिक्शंस हैं, इसके बाद आपके लोगों की ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गई है। वेदर वी स्पीक अबाउट इनबाउंड टूरिस्ट और वी स्पीक अबाउट आउटबाउंड टूरिस्ट, आपके लोगों की ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, जिसकी वजह से ऑटोमेटिकली ग्रोथ किसकी होगी, हमारी होटल इंडस्ट्री की होगी। सो विद दीज वर्ड्स आई वुड लाइक टू कंक्लूड माई टॉपिक प्लीज। थैंक यू सो मच टू ऑल। थैंक यू। ओवर टू यू हितेश प्लीज। थैंक यू। हितेश। Thank you. Thank you. Thank you very much, sir. With these words, I would like to thank all the participants. Tourism is all about people and experiences. The restart of tourism will help kickstart recovery and growth. It is essential that the benefits this will bring are enjoyed widely. World Tourism Day will reflect this.
Thank you, Hitesh. Thank you. Thank you, sir.